टीम ट्रिकी नहीं है, ग्रुप स्टेज में तो इंडिया चला जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, 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 I mean, ट्रिकी see, अगर है तो थोड़ा सा पाकिस्तान हो सकता है। बोलने लायक तो कुछ बचा नहीं है भाई. This was very sad, disheartening, unexpected, to be honest. A pure disgrace. We have not thought that a team like India will perform like this. They might have won the match in case of scorecards or in let's say in international level, but we don't see it as a win. So आज उसके बारे में बात करेंगे. And welcome to Pitchside Chaos. This is Rahul speaking, and I have my brother Abhirup beside me, and with my friend Naitik as well. He is the new inclusion. So let's move on. They both have some overviews to give. So, Naitik, I hope you have gone through the match and you have seen the match entirely. Previously, I mean yesterday, and I guess as I can see by your face that it was not a very happening thing that has happened. So I'd like to get your overviews and get your thoughts about it. Please go on. Yeah, so you asked me that have I gone through the match? Unfortunately, yes, I did go through the match. For 3 or 4 hours, I stuck my ass on the table and I was watching the match. भाई देखने लायक तो कुछ था नहीं वैसा. कभी ऐसा हो जाता है सैटरडे संडेज यू गेट योर वीक ऑफ एंड ये लाइन हो जाता है, यू गेट दिस मैच एंड देन दे प्ले ब्लडी लाइक दिस with a team that was not even maybe in the picture. वो favorites के साथ खेल रहे हैं. We are trying to defend the title. This is not how you defend the title. I have a lot of things to say, but let's move ahead. Let's move ahead. I guess we will agree on this. And to be honest, I guess everyone who has watched the match yesterday has the same overview about this particular thing, that no one is extremely happy about the performance. So I'll get the overview on this particular thing from Abhirup as well. So Abhirup, how do you feel about the match, the way it went ahead from the very first ball to the last? देखो एक्चुअली जो इंडिया जो फेवरेट के टाइटल से स्टार्ट हुआ था, मतलब बहुत सारा एंटिसिपेशन था कि इंडिया नंबर 1 टीम की तरह खेलेगा, टाइटल डिफेंड करेगा, लेकिन मतलब वो स्टार्ट में ना वो सोडा वाटर बोतल का जो इफेक्ट होता है ना, मतलब फुस फिज निकल गया, राइट. तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, सोचा जाए तो लॉन्गर पिक्चर में ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि जो कोलैप्स आया वो पहले मैच में आ गया. हो सकता था ये बाद में भी आए, नॉकआउट में आता तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता. लेकिन यस, दिस इज डिसअपॉइंटिंग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि इंडिया जैसे टीम के साथ ऐसा होगा. लेकिन कभी कभी होता है तो मतलब हम लोग ट्रैक के नीचे आ जाते हैं. So basically you are just looping on the reverse psychology. So Right, जो बुरा होना था पहले हो गया. Let's hope for the best and look on the positive side and let's move on with the upcoming tournament. ये अगर कोई बड़ा टीम के साथ होता तो शायद इंडिया बैक ना कर पाते. Obviously, I do agree with this point as well. अगर कल यूएसए के साथ इंडिया जो खेल के 29 रन में जीता है, I'm pretty much sure वहाँ पे अगर बांग्लादेश पाकिस्तान, चाहे वो टीम वर्ल्ड कप में हो या ना हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो, अगर कोई एक्चुअली a team which is like a giant like India उसके सामने होता, I'm pretty much sure the match was gone from India's hand. Yes. To be honest. तो इसलिए मेरे को वही लगता है कि हाँ खराब खेला है, डिसअपॉइंटिंग है, हम लोग सब डिसअपॉइंटेड है, लेकिन जो हुआ पहले मैच में हो गया, अब आगे कुछ अच्छा ही होगा. We hope the same as well. You have the same. Let's move on to Naitik. I have a question for you. You know, Yes. We do see that the top order batting order has totally collapsed for India. So I mean, what could have been a most effective thing that they could have done, or the way they could have played the game that might have turned the scenario in a different picture? Can you just explain your thoughts about it? Yes, so my thoughts are like I'm not a professional cricketer. I do not know how to play better than them. But what this is going to do कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ऐसे खेल लिए, गंभीर का मूवी अपने हम लोग सब ने देख लिया. I just hope that there are, they do not make bizarre changes in the team from here on. This is a team that defeated the New Zealand campaign. So I hope it goes. Let's put our faith forward with them and देखते हैं फिर क्या होता है. Like this was the beginning match. Pitch का ये था वो था. There were too many things to consider as well. So I'm just being optimistic over here. Let's move ahead and see how this will go. I understand. Totally understand. So
जैसे कि बोल रहे थे, यस इंडियन टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली कोलैप्स हुआ है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिगर पिक्चर फ्रॉम देम बट दे हैव नॉट डिलीवर्ड. बट जहाँ पे हम लोग इंडियन बैटिंग टॉप ऑर्डर के बारे में बात करेंगे वहाँ पे ऑब्वियसली आ जाएगा यूएसए का बॉलिंग लाइनअप एंड दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब. According Yes. to me, they have done a marvelous job. I guess Spectacular. spectacular. Everyone will be agreeing on this point. So उसके बारे में क्या ओवरव्यू है अभिरूप से मैं पूछने वाला हूँ. So like यहाँ पे हम लोग को नया प्लेयर्स देखने को मिले, नया अंडरडॉग्स ऊपर आ चुके हैं एंड I'd like to share your thoughts about it as well. अगर मैं इफ आई रिमेम्बर के लास्ट वर्ल्ड कप में भी यूएसए अच्छा खेला था, पाकिस्तान को शायद हराया था वो. हरा था. Yes, yes. they did. Yes. और उसके साथ साथ ये जो प्रैक्टिस मैच हो रहा था उसमें भी यूएसए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. तो ऐसा नहीं कि हम लोग जानते नहीं थे. आज के डेट में तो हर टीम के साथ वो डेटा एनालिटिक्स रहता ही है, कौन क्या करता है, कहाँ पे बॉल डालता है, सब मालूम ही है. ऐसा नहीं है. एक्चुअली इंडिया बहुत सोचा था कि ये सब ब्रेकफास्ट मैच होगा, ठीक है, तो चलो जाएंगे, दिखाएंगे, उड़ाएंगे, आ जाएंगे. लेकिन उसका भी एक दूसरा साइड भी होता है, वो लोग उतना सा सोचा नहीं था. तो मेरे को लगता है उसके लिए ऐसा हुआ है. लेकिन इंडिया संभल गया है, आगे जाके ऐसा गलती फिर से नहीं होगा. लेकिन ड्यू क्रेडिट जो मिलना चाहिए यूएसए के बॉलर को वो देना पड़ेगा. वो लोग जो बॉल जिस लाइन लेंथ पे रखा है, और पहले हाफ में हम लोग ये भी देख रहे थे कि बॉल पड़ के थोड़ा स्लो भी आ रहा था बैट्समैन को. ऑब्वियसली पिच तो बहुत स्लो ही था कल. नहीं, सेकंड हाफ आते आते पिच ठीक हो गया था, लेकिन फर्स्ट हाफ में हाँ मतलब मैच के शुरू में हाँ, पिच काफी स्लो था. हाँ, बॉल बैट तक रुक आ भी के नहीं आ रहा रहा था और मतलब मारने पे ठीक ठाक जा भी नहीं रहा था. Right. तो वहाँ पे यूएसए का ऑब्वियसली एडवांटेज मिला है. हाँ, उसमें एडवांटेज मिला है, लेकिन वो लोग एग्जीक्यूट भी किया है. एग्जीक्यूट भी किया है. मतलब दे हैव टेकन द होल एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. एडवांटेज मिलता है, ठीक है, एडवांटेज मिलता है. बीच में अगर घास रहता है तो बॉल सीम करता है, सब होता है, लेकिन वो तो एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है. वो लोग बड़े लेवल पे आके जो एग्जीक्यूट किया है ना, उसके लिए उन लोगों को मतलब ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए. वो उनके जो बॉलर्स है उसके साथ साथ उन लोगों का जो फील्डिंग का जो एफर्ट था वो देखने लायक था. हाँ ऑब्वियसली ये आपने एकदम सही बोला है कि मतलब वहाँ पे पिच में काफ़ी चेंजेस थे एंड ऑब्वियसली यूएसए के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज थे. बट ऐसे एडवांटेज बहुत टीम को मिलता है जहाँ पे दे डोंट एग्जीक्यूट एंड दे डोंट टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जहाँ पे यूएसए ने लिया है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे आ जाता है कि अपना कैप्टन स्काई, आई गेस ही हैज प्लेड अ मार्वेलस गेम यस्टरडे. अगर स्काई सूर्यकुमार यादव अगर नहीं रहता, मैं प्रीटी मच श्योर हूँ इंडिया के हाथ से मैच ये निकल चुका था. Saved our asses. Saved our asses, to be honest, from top to bottom, from hip to toe. So उसी के बारे में I will go ahead and ask Naitik about his overviews about is he totally happy with the captain's talk and what could be a better option or what changes might India might be doing in the team in case of batting order. So I'd request you to please go on. Yeah, so I literally believe that the Indian captain did deliver like a captain yesterday. He was in a pretty messy form for the last few matches, a lot of matches to be precise. But kal, like the performance he gave, as I said, he saved our asses. Without him, India might have collapsed like 100, 120 something or total, and the match was already lost. Then again, coming back to the USA performance, I wanted to just say one thing, that whenever the ball was in air, you see there was a fielder right at the bottom of that. And the voice of cricket, he said that ye match is not going according to India's script. Yes. Not going according to India's script. And Gavaskar also acknowledged that yes, this is not going according to India's script. This is not how India would play. They dropped one or two catches, like those were slippery, that were hard chances. But I would say like that was top-notch fielding from them. Top-notch fielding. Yeah, I do agree. I mean, saying on that particular point, I'd like to reconstruct on that particular point. Let's say India could have done a much better part. May not be in the top order, but in the middle order. जहाँ की हम लोग सिर्फ एक बैट्समैन के ऊपर भरोसा करके पूरा अगर मैच निकलना चाहते हैं, that will be too much difficult for any team to perform. Cricket is a total team game. सिर्फ मैं खेल के निकलूंगा और बाकी प्लेयर्स सिर्फ देखते रहेंगे. दिस इज नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट विच इज अ टीम स्पोर्ट. Yes. So उसके आई लाइक टू गेट सम ओवरव्यूज अबाउट दैट फ्रॉम अभिरूप एज वेल. सो लाइक इंडिया बैटिंग में लेट्स से मिडिल ऑर्डर में स्काई ने मैच पकड़ा एंड देन फिर भी विकेट्स गिरते रहे. लाइक द फील्डिंग सेटअप was extremely good from USA as well, like Naitik said. So
आई एम प्रीटी मच श्योर कि आने अगर ये प्रैक्टिस मैच में ये हो रहा है, आने वाले वर्ल्ड कप में द अदर टीम्स हैव आल्सो वॉच द मैच एंड दे हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट किस किस एरिया में इंडिया लैगिंग बिहाइंड, एंड ऑब्वियसली उसका एडवांटेज लेगा. सो आई लाइक टू गेट सम ओवरव्यू ऑन दैट कि कोई दूसरा टीम या इंडिया का कहाँ पे थोड़ा खामियां है जहाँ पे उन लोगों को काम करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो. देखिए एक्चुअली खामियां तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बोलूंगा कि एक्चुअली इंडिया जो लास्ट एक साल से जो T20 का टेम्पलेट से बैटिंग करता है, वो कल भी वैसे ही टेम्पलेट से ही बैटिंग कर रहा था. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि कल सिचुएशन कुछ और था, सिचुएशन कुछ और डिमांड कर रहा था. उस तरीके से इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. जो इंडिया का टेम्पलेट है लास्ट एक साल से इंडिया जो बैटिंग कर रहा है, कि जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लैंड के भाषा में बेसबॉल क्रिकेट, ठीक है, Yes. इंडिया भी वैसे ही खेल रहा था, कल भी वैसे ही खेल रहा था वो लोग. लेकिन प्रॉब्लम आया कि जब जल्दी विकेट गिर जाता है उस समय पे थोड़ा सा जब एक्यूमुलेट करना पड़ता है हम लोगों को, तो उस जगह पे इंडिया थोड़ा लैग कर गया. ठीक है, यही चीज अगर थोड़ा इंडिया देख लेगा, और मेरे को लगता है 100% इंडिया वो चीज को लेके काम करेगा. जैसे दूसरे टीम ने इंडिया का खामियां देखा है, इंडिया भी अपना खामियां देखा है. तो आगे जाके जब मैच हम लोग खेलेंगे, हम लोग देखेंगे कि इंडिया ये सब जगह पे ना, मतलब थोड़ा सा वो सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिपेयरिंग वर्क. अच्छा. वो लोग थोड़ा सा ये सब जिसमें काम करेगा. ऐसा नहीं कि मतलब हो गया तो हो गया, चलो जीत गए तो सब कुछ जीत गए, ठीक है, लेकिन जीतने के बाद भी हम लोगों को जो जो लूफॉल्स है उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. मेरे को लगता है वो टीम मैनेजमेंट करेगा भी, करके मेरे को लगता है वो ठीक भी होगा. ठीक है, तो इंडिया का जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो डिमांड करता है कभी कभी हम लोगों को लगता है उसमें भी खेलना चाहिए. ठीक है, हर प्लेयर एक ही स्टाइल में खेल के आउट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. बाकी सब ठीक है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली जो मैं बोल रहा था, दिस बॉलर शैडली वैंश कैलविक, आई एम सो सॉरी इफ आई एम बुचरिंग योर लास्ट नेम, बट यू आर ए जेम टू द यूएस टीम. दिस गाय हैज रियली गुड गेम सेंस. अभी मुझे आई एम नॉट रियली एन एनालिस्ट, आई कैन नॉट एनालाइज दोज थिंग्स, but what I saw yesterday is this guy really has some good game sense. He can mix up the ball pretty good, and initial wickets were taken by him. And then again, the game sense that he showed yesterday, it was to the point. You could say that whatever US performed yesterday, half of the credits goes to him. I would say that that's my opinion, that half of the credits goes to this guy. आई जस्ट इंटरप्ट, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर. कल अच्छा डाला भी बॉल, लेकिन आई थिंक इंडियाज बैटिंग जो कल था वो थोड़ा एक जस्ट एवरेशन था. ठीक है, मेरे को ये लगता है, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है. दूसरे दिन यही बॉलर जब आएगा, आप देख लीजिएगा, यही बैट्समैन यही बॉलर को 4 ओवर में हाफ सेंचुरी करके भेजेगा. ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो बैटिंग है वो ये बॉलर उनके सामने कुछ नहीं है. लेकिन वो कल अच्छा डाला था, इंडिया का भी एवरेशन था, वो एक साथ एक ही दिन में आ गया, इसलिए ये परफॉर्मेंस आया है. लेकिन मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, दे आर ही इज गुड एंड दे प्लेड वेल. ओके, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू, कंक्लूजन करने के पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ. कंक्लूजन में आएंगे. लाइक यू से अभी आपने जो बोला है कि ऑब्वियसली ये बॉलर बाद में आने वाले मैचेस में अगर सामने आएंगे तो इसको मतलब ही इज गोइंग टू गिव सम रन्स, जहाँ पे प्लेयर्स ऑलरेडी उसको नॉक करके जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज जस्ट वन ऑफ अ परफॉर्मेंस दैट वी माइट हैव सीन फ्रॉम दिस बॉलर. आई थिंक सो. सो जस्ट आई मीन दिस इज काइंड ऑफ लाइक जस्ट बिकॉज उसका नाम अभी हुआ नहीं है, उसी हिसाब से आप बोल रहे हो. लाइक ऐसा नहीं है, वो उसका जो लेंथ भी था वो थोड़ा, मेरे को लगता है ही इज अ हिट द डेक बॉलर. ठीक है, और इंडिया के प्लेइंग कंडीशन में हिट द डेक बॉलर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है. हम लोग इसके पहले भी देखे हैं कि आपका नाम है वो हर्षित राणा, इंडिया के पिचेस में कितना पिटता भी है वो. तो मुझे लगता है, लेकिन ये भी हो सकता है आगे आके वो इम्प्रूव करे, इंडिया का किसी भी टीम के अगेंस्ट में जो लूफॉल होता है उसको निकाल के उसी लाइन लेंथ में डाले तो अच्छा होगा. ऐसा नहीं है, उसका जो ड्यू क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए. कल जो परफॉर्म किया है ही इज टॉप नॉच. लेकिन मेरे को लगता है ये अगर दूसरे दिन होता, कल जो इंडिया का एवरेशन आ गया वो अगर नहीं आता, टॉप ऑर्डर जो कोलैप्स हुआ है, तो मेरे को लगता है ये बॉलर को मेरे कमबैक करने में कितना टाइम लगेगा वही देखना है. मतलब रन पड़ने के बाद जो कमबैक होता है ना, वो क्या होता है, क्योंकि लास्ट ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इसको जो पेला है वो देखने लायक था. तो आई थिंक मेरे को लगता है कि I definitely agree to that, but then again, Surya Kumar Yadav ने जो वो शॉट्स खेले उसके अगेंस्ट, he didn't give him room per se. He had to make room, and because of a batsman of his stature, he was able to beat this guy in his game.
That was also in the last over because he didn't have anything to lose, anything to gain. You only have something to gain, nothing to lose at that नहीं, point. इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो उस समय पे जब वो बॉलिंग डाल रहा था ना, तब विकेट भी गिर रहा था, तो उसके अगेंस्ट में कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा था, और लास्ट में आके जब उसको मार पड़ रहा था तब वो रिएक्ट कैसे किया ये देखना था। लेकिन 4 ही ओवर का होता है एक बॉलर का, अभी तो लास्ट में वही मार बात तो है। पड़ेगा ही, तब तो हाँ, बॉल हल्का हो गया। उसी समय रिएक्ट देखना होता है कि बॉलर कैसे कमबैक करता Yup, है। exactly. मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ ये पूछूंगा एकदम, तुम लोगों एकदम, को। एकदम, वो कोई है कि ये मैच में बुमराह नहीं था इलनेस के वजह से, Obviously. उसके जगह पे अर्शदीप और सिराज दोनों ने खेला और आउटस्टैंडिंग खेला, ठीक है, दोनों ने विकेट लिया। अगले मैच में बुमराह फिट होके वापस आएगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उसमें? क्या बुमराह फिट इन होगा? फिट इन तो करना पड़ेगा, बुमराह जैसे स्ट्रेचर है जैसा, लेकिन उसके जगह पे कौन किसको ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि दोनों फास्ट बॉलर ने अच्छा किया है, तो आपको दोनों को क्या लगता है? So if you ask me, this is very a tricky question. This is a very tricky question because Siraj performed like way better than Arshdeep. Arshdeep was really good on the point, but Siraj performed way better than Arshdeep. Initial wickets were taken by Siraj. So I am a kind of a player. मैंने भी क्रिकेट खेला है, ऐसा नहीं कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला है. So when somebody is coming in and throwing the ball from the right hand, then coming in and throwing the ball from the left hand, it makes a difference. So if you're keeping both right-handed bowlers, then just because they performed and this guy already has a season pass खेलने के लिए, if he is playing, Bumrah is playing, कोई कितना भी वो 10-11 विकेट ले ले, but Bumrah has a place in this team. राइट, बुमराह is दैट्स बुमराह. व्हाई आई एम आस्किंग के तब उस वक्त टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? So according to me, I would drop Arshdeep and get Bumrah and Siraj in. ओके, देन यू? सो आई मीन लाइक भाई ने जो बोला है मैं सहमत हूँ उससे. लाइक बुमराह, जसप्रीत बुमराह, ही इज काइंड ऑफ अ ब्रांड इन इंडियन टीम. अगर हम लोग को कोई नहीं जीता सकता है, जसप्रीत बुमराह है अपना अपने को बचाने बुमराह के है लिए. तो मुमकिन है. हाँ, बुमराह है तो मुमकिन है, अपना गांड सूझा हुआ है, वही सब ठीक करके जाएगा. सो अगर इफ बुमराह कम्स इन, obviously I don't think Siraj will get that much of importance in the team at this very point of time, but depending how the matches goes, how the entire season goes, उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा मैच में क्या सिचुएशन आता है और दूसरी टीम में भी क्या क्या चेंजेस आता है, उसी हिसाब से हम लोग को चूज करना पड़ेगा. बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई विल ऑब्वियसली चूज फॉर बुमराह and choose Bumrah over In place Mohammad of Shah in place of Siraj, and I will. And you said in place of Arshdeep, I say Siraj and Bumrah. and you said No, Arshdeep and Arshdeep, Bumrah. yes. I will always go for Arshdeep and Bumrah Because of his left arm angle. yes, left arm angle. एक तो लेफ्ट एंड राइट आर्म का कॉम्बिनेशन भी रहेगा, एंड ऊपर से these two combinations are the proven, they have given us proven results Right. in I agree. in the history. And टू बी ऑनेस्ट आई गेस वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाता है हम लोग को इंडिया का मैच कन्वर्ट करने के लिए, जहाँ पे विकेट ज़रूरत हो या रन बनाने हो. हम प्रीटी मच श्योर दिस विल गिव अ ह्यूज इम्पैक्ट टू द अदर टीम, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द अपकमिंग वीडियो. आपने अपना कॉम्बिनेशन बता दिया, इनका कॉम्बिनेशन बता दिया, मैं अपना कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ. ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसमें कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है. बुमराह अगर फिट इन होके आ जाता है तो क्या टीम बनेगा, ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. क्यों I request you guys to provide your Team, reviews, playing 11. the playing 11. Sure. Please do. Especially the last 4 bowling lineup Right. for India. So we will be waiting for those comments. So जितना चाहे वो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, बेल आइकन थोड़ा दबा के जस्ट किल इट, एंड जितना हो सके कमेंट डालो. हम लोग भी ऐसे बैठे रहेंगे देखने के लिए. वी ऑब्वियसली गो थ्रू द कमेंट्स, एंड ऑब्वियसली जो कमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, वी विल गोइंग टू comment on those comments, And also mention those names on this channel as well. Yes, and that will be a shout out to as well.